Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 9, that is biomolecules. Today we will study about another biomacromolecule, that is nucleic acid. So let's start. Okay students, we are doing biomolecules. In the previous lecture, we studied about biomacromolecule proteins, in which we discussed about the structure of the protein, the various functions of the proteins and important types of the proteins. In today's lecture, we will study about another biomacromolecule, that is nucleic acid. So let's start. Students, you already know that biomacromolecules, they are having molecular weight greater than 10,000 daltons. For example, proteins, polysaccharides, nucleic acids, these are various biomacromolecules and their molecular weight is 10,000 dalton and above. So this is the average composition of these molecules in the cell. For example, water is 70 to 90%, proteins are 10 to 15%, carbohydrates 3%, lipids 2%, nucleic acid 5 to 7% and 1% ions. So these are familiar diagrams, students. This is nucleic acids, this is RNA and DNA. You have already done the structure of RNA and DNA in your class 10th also. DNA is a double helix structure and RNA is single strand. So in today's lecture, we will study about nucleic acid in detail. Okay students, there is a Friedrich Miescher in 1869. He isolated what he called nuclein from the nuclei of the pus cell. So pus cell के जो nucleus थे उसमें से उन्होंने एक substance था वो isolate किया और उसका नाम रखा nuclein. So nuclein जो था it was showing acidic property. So later on उसका जो name था that become nucleic acid. Okay. So what are nucleic acids, students? Nucleic acids जो हैं they are polymers. Are long chains of nucleotides. So you know what are polymers? जैसे हमने proteins देखा कि proteins are the polymers of amino acids. Okay, इसी तरह से जो हमारे nucleic acids हैं वो भी polymers हैं. तो nucleic acids में क्या है, जो nucleotides monomers हैं, nucleotides link होते रहते हैं and they results in the formation of nucleic acid. So what is a nucleotide? न्यूक्लियोटाइड में स्टूडेंट्स तीन चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज द शुगर, दैट इज पेंटोज शुगर, कार्बन 5 शुगर है. उसके बाद एक फॉस्फेट ग्रुप है नंबर 2 पे एंड 3 इज द नाइट्रोजनस बेस. सो न्यूक्लियोटाइड जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट, शुगर विच इज राइबोज एंड अ नाइट्रोजनस बेस. ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट DNA and RNA. So first we will study about the DNA. So what is DNA, students? DNA means deoxyribose nucleic acid. So DNA जो है वो डबल हेलिक्स है, स्टैंड जो है वो स्पाइरली क्वाइल्ड है और DNA जो है उसका मॉडल हमें दिया वॉटसन एंड क्रिक ने. सो DNA क्या करता है स्टूडेंट्स, इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एंड इट इज स्टोर्ड इन द क्रोमोसोम्स. और DNA जो है वो क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सो ये हेरिडिटी के कैरियर हैं. एक्चुअली DNA जो है वो प्रोटीन्स के साथ मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन बॉडीज बनाते हैं. दे आर क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली द कैरियर ऑफ द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ओके, नेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा DNA है. DNA जो है प्रोटीन्स के साथ मिलके न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं. अभी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी. उससे क्रोमोसोम्स बनते हैं और क्रोमोसोम्स कहाँ हैं, जो हमारा सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. राइट. ओके, सो DNA को अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स के. सो DNA है या RNA है वो किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है. ठीक है. और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं स्टूडेंट्स, उसके 3 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड के पास शुगर है, जैसे पेंटोज शुगर है. पेंटोज शुगर इज़ अ 5 कार्बन शुगर और 5 जो ये शुगर है, फॉर एग्जांपल जो आपका DNA है, अभी
हमने देखा डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए में जो शुगर है दैट इज डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में जो शुगर है दैट इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सो आरएनए में जो शुगर है दैट इज राइबोस। सो ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है और इट इज डीऑक्सीराइबोस इन डीएनए एंड इट इज राइबोस इन आरएनए। देन उसके बाद हमारा नाइट्रोजनस बेस है। आपको पता है कि जो मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट्स जो है वो शुगर है, नंबर 2 पे नाइट्रोजनस बेसिस है और नंबर 3 जो है दैट इज फॉस्फेट। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस जो है डीएनए के पास 2 टाइप्स के नाइट्रोजन बेस होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड प्यूरीन्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड पायरिमिडीन्स। सो प्यूरीन, अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, प्यूरीन क्या है बच्चे, ये आपके एक तरह से डबल रिंग स्ट्रक्चर है और पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और प्यूरीन्स जो है वो क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सो ये 9 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, और पायरिमिडीन जो होती है वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है, राइट। सो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। लेट्स स्टडी डीएनए में कौन कौन से प्यूरीन और पायरिमिडीन्स होते हैं। सो सबसे पहले हमारा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है न्यूक्लियोसाइड्स। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन बेस है। तो अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन बेस जो है वो 2 टाइप्स के हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। जो प्यूरीन्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें उसका एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास एडेनिन हो गया या ग्वानिन हो गया, ये क्या है, प्यूरीन्स हैं। और उसके बाद ये डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद पायरिमिडीन्स कौन से होते हैं, जैसे साइटोसिन है, थायमिन है या यूरासिल है, ये क्या है, पायरिमिडीन्स हैं। ओके, सो ये सारे नाइट्रोजनस बेस हैं। तो लेट्स स्टडी कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बच्चे, जब हमारा नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ अटैच होता है तो जो आपका कंपाउंड बन रहा है उसे हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। सो नाइट्रोजन बेस जो है व्हेन इट इज लिंक्ड विद द पेंटोज शुगर एट कार्बन 1 पोजीशन। सो आप ये देख रहे हो, दिस इज कार्बन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड 4 और यहाँ पे कार्बन 5। सो कार्बन नंबर 1 पे जो है नाइट्रोजन बेस, जैसे यहाँ पे एडेनिन जो है क्या है, प्यूरीन्स है। मैंने अभी बताया कि ये प्यूरीन्स है। सो कार्बन नंबर 1 पे जो है वो जब नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना उसको अभी हम न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलेंगे, इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। सो न्यूक्लियोसाइड में जैसे एडेनिन और राइबोस शुगर मिल गया, डीऑक्सीराइबोस शुगर मिला डीएनए में, सो ये बन गया एडिनोसिन। सो ग्वानिन जो है, ग्वानिन क्या है, दैट इज पायरिमिडीन। सो ग्वानिन जो है वो प्यूरीन है। सो ग्वानिन के साथ भी अटैच करके ग्वानोसिन बन गया, ऐसे थाइमिडीन है या यूरिडीन है। सो व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड 2 चीज़ों से मिलके बनेंगे, दैट इज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। ओके, then next is nucleotides. What are nucleotides? न्यूक्लियोटाइड किससे बनेंगे, नाइट्रोजन बेस एंड शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। अभी हमने देखा जब न्यूक्लियोसाइड बना था तो ये आपका शुगर है, उसके साथ कार्बन नंबर 1 जो है उस पर नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया, वो प्यूरीन भी हो सकता है और पायरिमिडीन भी हो सकता है, जैसे साइटोसिन, थायमिन। सो पायरिमिडीन भी हो सकता है। लेकिन जब कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट आके अटैच हो जाता है देन इट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड्स। सो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। सो न्यूक्लिक एसिड्स दे आर मेड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मोनोमर्स हो गए और न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, दैट इज डीएनएज एंड द आरएनएज। Okay, so is it clear to you the difference between the nucleotide and nucleoside? न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं स्टूडेंट्स वो 2 चीज़ों से मिलके बने थे। न्यूक्लियोसाइड कैसे बने थे, नाइट्रोजन बेस और शुगर से मिलके बने थे। सो ये हमारे हैं न्यूक्लियोसाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड कहाँ है, जब हमारा पास शुगर है देन नाइट्रोजनस बेस है, कार्बन नंबर 1 पे अटैच है और कार्बन नंबर 5 पे जब फॉस्फेट आके अटैच हो गया तो हमारे पास क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो ये बहुत क्लियर है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले ये जो है हमारे पास शुगर है, ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन है। सो दिस इज कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1 पे जो है वो हमारा बेस अटैच्ड है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है तो ये पायरिमिडीन अटैच है और पायरिमिडीन जो है वो शुगर के साथ अटैच हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ पे जो नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 जो है उस पर जो है वो फॉस्फेट जो है अटैच है। सो ये स्ट्रक्चर बन गया न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड हैज फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। ओके, देन नेक्स्ट इज चार्गफ रूल। व्हाट इज चार्गफ रूल? बच्चे डीएनए जो है हमने देखा कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और डीएनए में ये यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड हमने बनाए हुए हैं। सो यहाँ पर ये शुगर है, शुगर के साथ फॉस्फेट अटैच्ड है और अंदर जो है वो नाइट्रोजनस बेस है। डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जो प्यूरिन्स होते हैं वो हमेशा किसके साथ पेयर करते हैं? पायरिमिडीन के साथ पेयर करते हैं। जैसे एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा, इसी तरह से जो ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ करेगा, या साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ करेगा, या टी जो है वो ए के साथ करेगा। राइट, सो इसका मतलब जो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स जो हैं वो आपस में पेयर करेंगे, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एडेनिन और थाइमिन जो है वो इसके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन या साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। Right, then what is Chargaff rule? According to Chargaff rule, which is given by Elvin Chargaff, complementary जब base pairing होती है तो A is always equal to T and C is always equal to G. ठीक है, A is equal to T and C is equal to D. अगर डीएनए में जितने आपके नाइट्रोजनस बेस A हैं उतने ही T होंगे, और जितने C हैं उतने ही G होंगे। A पेयर करेगा T के साथ और C पेयर करेगा G के साथ। सो दिस इज नोन एज चार्गफ रूल। ओके, सो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स कैसे बन रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो पॉलीमर हैं। किसके पॉलीमर्स हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं। ठीक है, सो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोस शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखना है कि डीएनए के जो पॉलीमर्स बन रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स डीएनए या आरएनए बन रहे हैं, वो किस तरह से बनेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब चेन बनेगी तो वो इंटरलिंकिंग होगी। कैसे होगा? जैसे एक सपोज करो यहाँ पर ये शुगर है, जो आपका न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड 1 है, ये न्यूक्लियोटाइड 2 है, ये न्यूक्लियोटाइड 3 है। सो न्यूक्लियोटाइड 1 जो है उसका कार्बन नंबर 3 और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो कार्बन नंबर 5 है उसके बीच में स्टूडेंट क्या हो रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है। सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा? 5 और 3 बॉन्ड कैसे को लिंक करेगा? 5 कार्बन ऑफ द पेंटोस ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड विथ 3 कार्बन ऑफ ए पेंटोस ऑफ एडजॉइनिंग न्यूक्लियोटाइड। कैसे बनेगा? 5 कार्बन, जो 5th कार्बन है ऑफ पेंटोस शुगर का, जो 5th कार्बन है एक न्यूक्लियोटाइड का, वो दूसरे जो शुगर है उसका जो 3rd कार्बन है उसके साथ लिंक करेगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, सो ये जो दो फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो दो शुगर मॉलिक्यूल आपस में लिंकिंग हो रहे हैं तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। और जो डीएनए हेलिक्स जो बन रही है, डबल हेलिक्स बना डीएनए का, इसमें जो डीएनए स्ट्रैंड की जो बैकबोन है स्टूडेंट, इस बैकबोन किससे बन रही है? शुगर और फॉस्फेट से बनती है। ठीक है, और जो नाइट्रोजनस स्पेसिस होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, और जो बैकबोन जो है, अगर इसको सिंपल फॉर्म में, हम स्पाइरल फॉर्म में नहीं बनाएंगे, अगर सिंपल फॉर्म में समझें तो ये जो बैकबोन है ये हमारी शुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर बनेगा। और इसके अंदर हमने देखा था कि कार्बन नंबर जो 1 होता है, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस है। सपोज यहाँ पे अगर एडेनिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा थाइमिन, अगर साइटोसिन है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ग्वानिन, अगर ग्वानिन है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा C, और अगर थाइमिन है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा A। देन एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड C एंड G के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से लॉन्ग जो है वो चेन बन जाते हैं जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो लिंक हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, और दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं। जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है, जो आरएनए है वो राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। सो आरएनए में स्टूडेंट क्या होता है, जो थाइमिन होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। सो थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। अभी हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे जब हम आरएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये डीएनए की 2 बैकबोन्स है।
ठीक है, विच आर मेड फ्रॉम फॉस्फेट्स एंड शुगर, एंड दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस। और नाइट्रोजन बेसिस जो है, जो बैकबोन जो होती है वो किससे बनी है, ऑल्टरनेट फॉस्फेट और पेंटोज शुगर से बने हैं। और नाइट्रोजन बेसिस जो है दे आर डायरेक्टेड इनसाइड द हेलिक्स एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द बैकबोन्स, ये बैकबोन के परपेंडिकुलर है। सो यू कैन सी द C, and C is showing the complementary pairing with the G, और यहाँ पर एक प्यूरीन है और दूसरा क्या है, पायरिमिडीन। जैसे G जो है वो पायरिमिडीन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और वो प्यूरीन हमेशा पायरिमिडीन या पायरिमिडीन हमेशा प्यूरीन के साथ ही पेयरिंग करता है, ठीक है। सो ये इस तरह से एक लेडर लाइक अपीयरेंस जो आता है, और जो पेंटोज शुगर जो होती है वो डीएनए में हमेशा डीऑक्सीराइबोज होती है। सो स्पेसिफिक बेस पेयरिंग है, प्यूरीन ऑलवेज पेयर्स विद पायरिमिडीन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो ये प्यूरीन पायरिमिडीन पेयरिंग जो है वो स्पेसिफिक होगा। साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विद गुआनिन एंड देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली थाइमिन जो है वो एडेनिन के साथ पेयर करेगा विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड G3 एंड अगेन C and G 3 हाइड्रोजन bonds. Okay, so each base wants to form either 2 or 3 hydrogen bonds. That's why only certain bases will form the pair. So complementary base pairing जो है वो DNA के अंदर होगी। और अभी हमने चार्गफ रूल स्टडी किया कि चार्गफ रूल के अकॉर्डिंग हमने देखा कि एडेनिन हमेशा इक्वल होगा थाइमिन के, और थाइमिन हमेशा इक्वल होगा एडेनिन के। सिमिलरली C is equal to G and G is equal to C. ओके, सो ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम है स्टूडेंट्स। डीएनए डबल हेलिक्स हमको दिख रहा है। डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो देखो कॉइल्ड हैं इस तरह से। सो ये स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के। ये वाले जो बैकबोन है डीएनए का, ये किससे बना है, दिस इज शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट्स। और अंदर जो है ये आपको नाइट्रोजनस बेसिस दिख रहे हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग शो कर रहे हैं। और देयर इज अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन द साइटोसिन एंड G एंड C और C एंड G। इसी तरह से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बिटवीन A एंड T, और यू कैन से T एंड A। ओके, नेक्स्ट, so this is double helix structure. Let's see some important points here. Students, जो DNA है, DNA का जो complete एक turn जो होता है, एक DNA helix का जो complete turn है यहाँ पे, so that is the 3.4 nanometers. One complete twist जो होता है वो 3.4 nanometer होता है। और जो internucleotide distance है, जैसे suppose यहाँ पर A है, ये T है, ये C और G है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, या जो न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे मोनोमर्स हैं जो मिलके पॉलीमर्स बना रहे हैं, सो जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज 3.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक जो डीएनए हेलिक्स जो होता है, एक जो टर्न है स्टूडेंट्स, उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 10 जो है वो न्यूक्लियोटाइड पेयर्स जो है वो होते हैं पर स्पाइरल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सो ईच डीएनए हेलिक्स हैज 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स पर स्पाइरल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और नाइट्रोजन बेसिस जो है, दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के जो नाइट्रोजन बेसिस हैं अभी मैंने आपको बताया, वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं, राइट। ओके, देन वॉटसन एंड क्रिक हमने अभी डिस्कस किया कि वॉटसन एंड क्रिक जो थे उन्होंने डीएनए का जो था वो प्रपोज करा कि डीएनए विच इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सो डीएनए जो है वो ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, वो प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल कर रहा है, जो हमारे प्रोटीन्स बन रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, बॉडी में रिपेयर हो रहा है, ठीक है। सो डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। एंड देन उसने बताया, वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था, उन्होंने कहा कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो रैप अराउंड ईच अदर हैं। सो जैसे बच्चे स्पाइरल स्टेयरकेस होते हैं, इस तरह से हम देखो स्पाइरल स्टेयरकेस जो है, इस तरह से डीएनए के स्ट्रैंड्स जो हैं वो रैप हैं अराउंड एन एक्सिस। सो स्ट्रैंड्स आर कनेक्टेड, स्ट्रैंड्स जो हैं आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अभी हमने देखा डबल एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड बिटवीन द एडेनिन एंड थाइमिन, एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द साइटोसिन एंड guanine. Okay students, then storage of DNA. What is storage of DNA? In eukaryotes, that is animal, plants and fungi, DNA is stored in the nucleus. अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपका सेल है and this is the nucleus. DNA कहाँ present है? DNA is present inside the nucleus.
ओके, देन डीएनए इज ओनली ऑर्गेनाइज, डीएनए किस में ऑर्गेनाइज होता है, क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होता है. बिटवीन द रेप्लिकेशन डीएनए इज स्टोर्ड इन अ कॉम्पैक्ट बॉल दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन. हमने सेल डिवीजन ऑलरेडी स्टडी किया. सेल डिवीजन में क्या होता है, जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, क्रोमैटिन होता है. ठीक है, सो क्रोमैटिन जो होता है, यहाँ पर एक स्पेशल बॉडीज बने हैं जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं. न्यूक्लियोसोम क्या होता है, डीएनए जो होता है वो एक रैप हो जाता है अराउंड द प्रोटीन. सो एक प्रोटीन्स के हैं, दे आर हिस्टोन, और डीएनए जो है इस प्रोटीन्स के अराउंड जो है इस तरह से रैप हो जाता है. सो इस जो बॉडी बनते हैं, जो कि प्रोटीन और डीएनए रैप होके जो बॉडी बना, उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं. और न्यूक्लियोसोम से लेटर ऑन कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, और क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस. सो दिस इज हाउ द डीएनए इज पैक्ड. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल अबाउट डीएनए. सो स्टूडेंट्स, हमने न्यूक्लिक एसिड डीएनए के बारे में पढ़ा, जो कि मेनली फाउंड इन द न्यूक्लियस में है डीएनए. और डीएनए कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में भी होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है, प्लास्टिड्स के पास अपना डीएनए होता है. और डीएनए जो है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल हमने स्टडी किया. अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के डीएनए जो है इसमें 2 राइट हैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं. ठीक है, और दोनों जो है वो एक डबल हेलिक्स जो है वो बनाया. हम जो दोनों चेन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे, स्पाइरली कॉइल्ड होंगे, और ये जो है 2 राइट हैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं. ओके, सो लेट्स स्टडी नाउ अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज नोन एज आरएनए, और दिस इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड. आरएनए इज मच अबंडेंट देन डीएनए. आरएनए जो है बच्चे, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. हम अभी टेबल फॉर्म में भी डिफरेंस करेंगे, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए का एक बेसिक आइडिया हम ले रहे हैं. इसी को बहुत डिटेल में हम +2 में पढ़ेंगे, क्योंकि +2 में स्टूडेंट्स जब हम मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो वी विल स्टडी इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ दीज 2 न्यूक्लिक एसिड्स, कैसे वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे. ठीक है, सो अब हमने देखा कि जो डीएनए है उसमें जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है, जबकि जो आरएनए में शुगर क्या होती है, राइबोज होती है. और आरएनए में क्या होता है कि थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है. यू जैसे ए जो है वो टी के साथ पेयर कर रहा है इन द डीएनए, बट इन द केस ऑफ आरएनए ए का जो पेयरिंग होती है कॉम्प्लीमेंट्री, वो यू के साथ होती है, दैट इज यूरासिल. ओके, आरएनए जो होता है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, एंड डीएनए क्या होता है वो भी हमने देखा, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड. ओके, आरएनए मॉलिक्यूल्स आर मच स्मॉलर देन डीएनए मॉलिक्यूल. आरएनए की 3 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, दैट इज राइबोसोमल आरएनए, इट इज नोन एज आरआरएनए, messenger RNA, that is mRNA, and transfer RNA, which is known as tRNA. So these are the 3 types of RNA. First is ribosomal RNA. So percentage of total RNA is 75%. It is the major component of the ribosomes. Ribosomes क्या होते हैं? Ribosomes क्या है? वो प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है. सो RNA जो होता है वो मेनली बच्चे इट इज़ प्रेजेंट ईदर और फ्री फॉर्म में होता है साइटोप्लाज्म में, और कुछ ऑर्गेनेल्स में भी होता है जैसे राइबोसोम्स है या माइटोकॉन्ड्रिया है. सो जो आपका राइबोसोमल RNA है वो राइबोसोम का मेजर कंपोनेंट है, और राइबोसोम क्या है, दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है. सेकेंड है mRNA विच इज़ नोन एज मैसेंजर RNA. सो इसका परसेंटेज टोटल का अकॉर्डिंग देखें तो 5 to 10% होता है, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम द डीएनए. स्टूडेंट्स, डीएनए कहाँ है? अभी हमने देखा कि डीएनए कहाँ है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है. ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है. डीएनए जो है, डीएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकता. सो डीएनए क्या करता है, अपनी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसको पास करता है? मैसेंजर आरएनए. एज द नेम इज इंडिकेटिंग मैसेंजर. सो आरएनए जो डीएनए से मैसेज लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, that is known as messenger RNA. So it carries the information for the protein synthesis from the DNA. DNA is there in the nucleus, और वो information लेके messenger RNA nucleus से बाहर आता है राइबोसोम्स के पास, because ribosomes are the protein factories जहाँ पे protein synthesis होगा.
थर्ड टाइप का जो आरएनए है दैट इज ट्रांसफर आरएनएस, और ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड कैरी करेगा, बिकॉज प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, प्रोटीन्स दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसफर आरएनए कैरी करता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। Okay, so ribosomal RNA and messenger RNA. Ribosomes, they are the site of protein synthesis. They have ribosomal RNA 65% and they have proteins 35%. They have two subunits. Ribosomes के 2 subunits होते हैं, smaller subunit and the larger subunits. So जब protein synthesis होता है वैसे ये अलग रहते हैं, dissociate होते हैं, पर जब protein synthesis होता है तो दोनों जो units होते हैं ribosomes के वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ attach हो जाते हैं। देन मैसेंजर आरएनए स्टूडेंट्स, मैंने आपको भी बताया कि जेनेटिक कैरीज द जेनेटिक कोड टू द राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आएगा और मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, राइट। थर्ड टाइप ऑफ आरएनए, दिस इज नोन एज ट्रांसफर आरएनए। सो ट्रांसफर आरएनए जो होता है बच्चे एक क्लोवर लीफ शेप का होता है। सो ट्रांसफर आरएनए मच स्मॉलर होता है, इसमें जस्ट 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सो स्मॉल साइज का आरएनए है, वाटर सॉल्युबल है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट बिकॉज ऑफ द जो आपके यहाँ पे जो पेयरिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, सो नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है जब वो पेयर होते हैं तो इस तरह से इसका क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। सो दिस इज नोन एज क्लोवर. So this is clover leaf-like structure. So this is transfer RNA which is very small, just having 70 to 80 nucleotides. ट्रांसफर आरएनए के पास यहाँ पर एक आर्म है इसका जहाँ पर अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं, एंड दिस इज द एंटी कोडोन साइड, बिकॉज मैसेंजर आरएनए स्टूडेंट्स जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है वो कोड्स की फॉर्म में होते हैं। सो एंड जो ट्रांसफर आरएनए का जो एंटी कोड होता है और मैसेंजर आरएनए का जो कोड होता है वो आपस में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, राइट। सो उसके अकॉर्डिंगली जो मैसेंजर आरएनए कोड लेके आता है, ट्रांसफर आरएनए का एंटी कोड उसके साथ मैच करता है और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो है यहाँ पर वो अटैच कर लेता है। सो स्टूडेंट्स, इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम प्रोटीन सिंथेसिस स्टडी करेंगे। ओके, सो जो ट्रांसफर आरएनए है उसका ये अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर CCA-OH सीक्वेंस होता है और यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स इसका एंटी कोडॉन लूप होता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि कोडॉन रिकॉग्नाइजेशन साइट है। ओके, उसके बाद इसके पास राइबोसोम रिकॉग्नाइजेशन साइट भी होती है। सो दिस इज ट्रांसफर आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंड है, बट नंबर बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जो पेयर कर रहे हैं आपस में, उसके कारण ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अटेन कर लेता है। सो दिस इज मैसेंजर आरएनए विच इज सिंगल स्ट्रैंड। अभी हमने स्टडी करा मैसेंजर आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है, और मैसेंजर आरएनए जो है वो कहाँ से होगा, डीएनए जो है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, जहाँ से मैसेंजर आरएनए जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो मैसेंजर आरएनए मैसेज कैरी करता है फ्रॉम द डीएनए। सो सिंगल स्टैंडर्ड है मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए में के पास ये कोडोन्स हैं जैसे ACG या GAC। सो ये क्या है, डिफरेंट कोड्स हैं। Then this is ribosomal RNA. The site of protein synthesis is ribosomes, and they are formed of proteins and ribosomal RNA. Okay. And third is, we discussed just now, the third type of RNA, that is known as transfer RNA. Okay students, so let's discuss few important difference, or let's revise, I should say, few important differences between the DNA and the RNA. So DNA is mainly confined कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी थोड़ा सा है। RNA जो है मेनली साइटोप्लाज्म में है, स्मॉल क्वांटिटीज फाउंड इन द न्यूक्लियस, एंड देन इट्स क्वांटिटी इज कांस्टेंट, एंड इट्स क्वांटिटी जो है आरएनए की वो वेरीज करती है। इसमें जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें जो शुगर है आरएनए में वो राइबोज है। डीएनए में बेसिस क्या है, जैसे पायरिमिडीन कौन से होंगे, एडेनिन है और थाइमिन है, और यहाँ पर क्या है, एडेनिन एंड यूरासिल। नॉट नेसेसरी, यहाँ पे पायरिमिडीन है, एडेनिन एंड यूरासिल। तो इसमें जो अमाउंट है एडेनिन का, मैंने आपको चारगफ रूल बताया कि एडेनिन का जो अमाउंट है वो ऑलवेज इक्वल टू होता है थाइमिन। इसी तरह से साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू गुआनिन।
राइट. बट एडेनिन और यूरासिल जो है नॉट नेसेसरीली इन इक्वल अमाउंट, नॉर आर साइटोसिन एंड गुआनिन. बट आरएनए में ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल अमाउंट में होंगे. डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा. सो इट कैन नॉट, आरएनए कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ, इट इज़ फॉर्म बाय डीएनए. आरएनए कहाँ बन रहा है? डीएनए जो है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है और मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द डीएनए. ओके, इन सम आरएनए वायरसेस जो है वो अपना आरएनए प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मैक्रोमोलिक्यूल. दैट इज़, आज हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा. 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज़ डीएनए एंड आरएनए. और हमने देखा न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. And how the nucleotides are formed? They are formed from nucleosides and they consist of pentose sugar, nitrogenous base. तो पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस से न्यूक्लियोसाइड बना एंड देन जब फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ अटैच हो गया देन इट बिकेम न्यूक्लियोटाइड्स. और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाए और उसके साथ हमारे लॉन्ग चेन बन गए एंड व्हाट वी गेट न्यूक्लियो पॉलीमर्स ऑफ, that is what we get is nucleic acids or DNA or RNA. So in the last we studied the difference between the DNA and the RNA. So I hope student आपको बायोमैक्रोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड्स क्लियर हो गए होंगे. So this is very important. डिफरेंस जो है वो भी क्वेश्चंस आते हैं एंड उसके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द DNA एंड द RNA. So I think this chapter, even this particular biomacromolecule जो है students along with carbohydrates and proteins, I think ये आपको सबको clear हो गया होगा. So thanks for watching.